اس کا 2 باب اور اس کی ہم 14 آیات سے لے کر 26 آیات تک پڑھیں گے۔ یعقوب رسول کا خط 2 باب 14 تا 26 آیت تک۔ زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یعقوب کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 14 تا 26 آیات تک۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر عمل کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمل سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ ورث جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آمین۔ خدام کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر خدام کی برکت ہو۔ آج ہم سیکھتے ہیں ایمان اور اعمال۔ ایماندار ہم سب ہیں، ہم جتنے سب بیٹھے ایماندار ہیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح آئے اور انہوں نے ہم سب کے لیے اپنی جان دے دی۔ ہم نے نجات پائی، زندگی پائی۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر کسی بھی کام کی یہ بات نہیں۔ عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث برکت بات ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایماندار تو سب ہیں، مسیح بھی ہم سب ہیں، نام کے مسیح ہیں، ہمارے ناموں کے آگے مسیح لکھا جاتا ہے، لیکن نام کے مسیح ہونا کافی نہیں ہے جب تک ہم روحانی طور پہ مسیح نہیں۔ جب روحانی مسیح ہوں گے تو پھر ہماری زندگی میں ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا، اور ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی۔ ایماندار ہر مسیح ایماندار ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کیا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ہم ایماندار ہیں کہ ہم مسیح ہیں۔ لیکن عملاً زندگی کیا ہے؟ ایک شخص ایماندار ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینی، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے یہ نہیں،
یہ शख्स ईमानदार बात कर रहा है दूसरे शख्स के साथ, लेकिन खुद बाहर निकलता है, अपनी आदत को नहीं बदलता, खुद सिगरेट पी रहा है, खुद वही काम कर रहा है, तो फिर उसका अमल कहाँ गया, या दूसरों को सिखाना उसका कहाँ गया। कभी कभी हम दूसरों के लिए बात करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी का अमाल दुरुस्त नहीं करते। आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? आज हम सीखते हैं कि आसमान पर यादगारी का दफ्तर लिखा जाता है। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब की फाइल वहाँ पे मौजूद है, वहाँ हमारे अमाल लिखे जाते हैं। तो मकाशवा का मुसन्नफ फरमाते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह तख्त पर बैठेंगे तो पहले किताबें खोली जाएंगी और हर एक का माल उसे दिखाया जाएगा और उसके माल के मुताबिक उसका इंसाफ किया जाएगा। मेरा ईमान है कि माल उन लोगों को दिखाया जाएगा जिन लोगों की खताएं, गलतियां सब कुछ है, और वो कहेगा कि ये तेरा जमीन पर अमाल था और तूने मेरे साथ मोहब्बत नहीं की, मुझे जाना नहीं है और मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं है, इससे मैं भी तुम्हें जानता नहीं। और फरिश्तों से कहा उठाओ, इसे वहां डाल दो जहाँ रोना दांतों का पीसना, यानी आग और गंधक की झील। और जिनके ईमान दुरुस्त है उनको दिखाने के लिए वो उसके दाहिनी तरफ खड़े हैं, कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे साथ अब्दी बादशाह में हमेशा की क्या पाओ, जिंदगी। हालेलुया हालेलुया। अगर ईमानदार शख्स है, उसके पास कोई भाई या बहन ऐसा है जो नंगे हैं, उनको कपड़ों की जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, हम मुझसे कह दे ठीक है ठीक, खुदावंद आपको बद कर दे, खुदावंद आपके साथ है, आप गर्म रहो, आप सेर हो जाओ, तो हो सकता है सर? नहीं। आज का चर्च क्या कर रहा? पहले जब आप स्टार्ट चर्च को देखें, जब स्टार्ट चर्च हुआ, चर्च की जब बुनियाद रखी गई, पतरस और बाकी रसूलों ने रखी, तो लोग क्या करने लगे? लोग अपना माल बेच कर रसूलों के कदमों में रखते और आके गरीबों की हाजत को दूर करते, जिनको नहीं उनको बांट देते, ताकि चर्च की क्या हो, तरक्की हो, यानी कि कलीसिया बढ़े। और इसी वजह से लोग अपना मालो सवाब बेच कर लाकर रसूलों के चरणों में रखते, और वो उनका ईमान था और ईमान के साथ उनका अमल था कि अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, मसीहत आगे बढ़ेगी, कलीसिया आगे बढ़ेगी। और लिखा के रोटी तोड़ने में मशगूल रहते और सादगी के साथ मिलकर खाना खाते। आज चर्च की अपना मोहब्बत नहीं है, चर्च में आप तफाक नहीं है, कलीसिया में तफाक नहीं है, जिसकी वजह से हमारा अमाल बेकार। कलीसिया के अंदर मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। और कुछ चर्च इस तरह काम कर रहे हैं कि सिर्फ आना ही आना है और चर्च ने खर्च नहीं करता। जब चर्च खर्च नहीं करता तो कैसे होगा, क्या होगा? इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इसी इब्तदाई कलीसिया के पास जाकर पूछें, इब्तदाई कलीसिया के अमाल को देखें कि उनका अमाल क्या था। वो बांट देते, गरीबों को दे देते। आज भी हमें कलीसिया में जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे को देखें, जानें, पास्टर इस बात का ख्याल रखें। कौन ऐसा शख्स है जो कलीसिया में बहुत कमजोर है, कौन ऐसा शख्स है जो कलीसिया में जो उसकी तरक्की के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो फिर हमारी कलीसिया का अमान और माल दुरुस्त है, पास्टर का भी मान और माल दुरुस्त है, ये तरक्की है। तो इस तौर से इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। अगर
ईमान रख के हमारा अपना अमल नहीं है, और हम इस सोच से हम कितने लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं, ईमान ही से जो है नूह ने कश्ती तैयार करना शुरू कर दी। ईमान ही से अमल भी किया, उसने तैयार की। जब लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते थे, उनका अमल नहीं था, तो आखिरकार वो दुनिया क्या होगी, बर्बाद। इस तरह से अगर वो इस बात को तर्क कर देता, ईमान ना रखता या अमल ना करता उस बातों पर, तो शायद वो कभी जिंदगी में कामयाब ना होता। तो ये है इस तरह से कलीसिया को, हम स्टार्ट चर्च को देखते हैं, ईदे पेंटिकोस्ट की इस बात को देखते हैं कि शागिर्दों ने 120 की जमात ने ईमान रखा और इस बात पर अमल किया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी कि रूह कुद्दुस भेजता। उन्होंने वेट किया, अमल किया, तो क्या हुआ, पाकरूस से ममूर हो गए और इब्तदाई चर्च की क्या हो गई, इब्तदाई चर्च की बुनियाद रखी गई। हालेलुया। तो आज कितने लोग हैं, कितने चर्चेस हैं जो हर रोज जो लोग कहते, फिर लोग मिलते जाते, उनमें शामिल होते जाते हैं। 3000 को एक दिन बपतिस्मा दे दिया, दूसरे दिन 5000 की तादाद हो गई और तादाद बढ़ती गई, लोग मिलते गए। और कई दफ़ा ऐसे चर्चेस के भी हैं जिनकी कलीसिया कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अमाल नहीं, अमल नहीं है। इससे आज सूरत इस बात की है कि हम इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात में मुर्दा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। अगर कोई शख्स हम पर सवाल करता है, हम कहते हैं जी मैं ईमानदार हूँ, मैं नजात याफ्ता हूँ, मैंने खुदा को, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं जो है खुदा की कुदरत में जाता हूँ, और वो जब हमारी ज़िंदगी में अमल को देखता है और वो शख्स देखता है कि हमारे इनका तो अमल ही नहीं है, ये खुद इस बात पर अमल, और वो कहता अपना जो ईमान मुझे दिखा, जो ईमान दिखा कि अमल है कि नहीं है। और दूसरा शख्स कहता मैं तो अमल करता हूँ और मैं अपना ईमान तुझे जो है अमल के साथ, ईमान के साथ दिखाता हूँ। जब उसका अमल होगा तो यकीनन तौर पे वो कामयाब जिंदगी होगी। कहता है नकम्मे शख्स, तू क्या नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के क्या है, बेकार है। इस तरह से हम एक दूसरे से पूछते, क्या आप ईमान रखते कि खुदा है और खुदा एक ही है? खैर अच्छा करते हैं कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन शैतान भी ईमान रखते और क्या करते हैं, थरथराते। फिर कहता तेरे से तो बेहतर शैतान है जो खुदा से क्या करता है, डरता है। खुदा के खौफ में चलना और खुदा के साथ वफादारी करना, उसके हुक्मों पर अमल करना भाई से भाई। अगर एक शख्स बहुत कमाता है, बहुत करता है, वो बहुत बांटता है, तो कमाई उसकी क्या है, शराब की, तो वो खुदा के लिए नहीं बांट रहा, वो खुदा के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। और भी आप ऐसे लोग देख सकते हैं जो बुतों के लिए करते हैं, बुतों के सर पर दूध डाल देते हैं, बुतों को पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, और क्या फायदा उसका है, फायदा अमल नहीं है इससे। मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया, तो क्या अमल से रास्तबाज न ठहरा? अब्राहम ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। ये मत सोचना कि वो कुर्बान नहीं हुआ, उसने पूरा इंतजाम, पूरा हर चीज को लेकर चला,
ईवन के बांध कर छुरी उस पर रख, उससे तो रख दी थी। अब खुदावन की मर्जी थी कि उससे उसके बेटे की कुर्बानी को कहा रोक ले अपना हाथ, मैं जान गया हूं कि तेरा ईमान और अमाल दोनों मजबूत है, तूने मेरी बात पर अमल किया है, और उसके अमल करने से उस पर बरकत पर बरकत, बरकत पर बरकत है। हम बरकतें भी ढूंढते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें देखें कि ये ईमानदार शख्स है, फिर अपना ईमान दुरुस्त करके दूसरे को दिखाओ, अपनी चेंजिंग दिखाओ, तब्दीली दिखाओ, फितरत को बदल कर दिखाओ। जब फितरत को बदल देते हैं तो फिर हम बाइस से बरकत। अब्राहम को देखे बुत खाना से निकल कर आया, बुत प्रस्ती से निकल कर आया, उससे अपनी फितरत को ही क्या किया, बदल दिया। और अपनी फितरत को जब चेंज किया है तो इस उम्मीद से, इस अमान से, इस अमल से था कि मैं उस मुल्क में जाऊंगा। कितना बड़ा ईमान और कितना उसका अमल था। इस सोच से और ये रिश्ता पूरा हुआ ऐसा कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, वो खुदा का दोस्त कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा का दोस्त कहलाया। आज भी खुदा आपको कहता तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली कि दोबारा गुलामी के जुबे में जुटो, तुम मेरे हम मिरास हो, मेरे दोस्त हो, और वो प्यार से मुझे आपको बुलाता है कि आप मेरी मीरास में क्या पाओगे, हिस्सा पाओगे। इस सोच से बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमल से रास्तबाज ठहरता है। हालेलुया, अमल से रास्तबाज ठहरता है। और कितने लोग, कितने आपको ऐसे जो कलीसिया आपको दुनिया में पाई जाती है जो ईमानदार तो है लेकिन अमाल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तरक्की नहीं। इसलिए जिस तरह हम राब फाश भी जब उसने कसदों को अपने घर में उतारा और दूसरे राह से रुखसत किया तो क्या अमल से रास्तबाज, अमाल से रास्तबाज ना ठहरी? अमाल से क्या ठहरी? रास्तबाज। एक औरत बुरी हो, उसका घर भी दीवार के ऊपर हो, आने जाने वालों का उसके साथ बड़ा राब्ता हो, और उसकी जिंदगी में एक ही दम खुदा का रूह काम कर जाए, पाकरू उसकी जिंदगी में, उसके माइंड में काम कर जाए, और वो जानती हो वहाँ के लोगों के, पता यरू के लोगों के कद कितने थे, 6-6, 7-7 हाथ, जितना बड़ा हाथ 1.5 फुट का हाथ होता है, उनके कद थे, लोग उनसे डरते थे और कीड़े मकोड़े लगते थे दूसरे लोग उनके। लेकिन राब पास जानती थी कि ये जितना मर्जी कद्दावर हैं, जितने मर्जी जोरावर हैं, लेकिन ये खुदा के आगे ठहर नहीं सकते। जब कसदों को उसने अपने घर में तारा और फिर छत पर जो है सन के जो पूलों के अंदर उनको छिपाया और ईमान से ये बात उनको दूसरी राह पर भेज दिया और उनसे कहा कि जब तुम इस मुल्क को पर कब्जा करो तो मेरा घर बचा ले। एक फाश औरत ने ऐसे ईमान में अमल करके अपना घर बचा लिया। ये भी उसकी नस्ल अभी भी दुनिया तक में हो, नहीं तो उन लोगों की तो खुदा में मिलिया मेट कर दिए, यरू की दीवारें गिरा दी। तो आज हम देखते हैं राब को कि राब ने कैसे अपनी जिंदगी को चेंज किया और अमल किया, और अमल से क्या ठहरी, वो रास्तबाज बन गई। गल जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, ऐसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अमाल नहीं है, अगर हमारा अमल नहीं है, हम कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम खुदा के साथ बहुत वफादार हैं, हम दिन रात बाइबल स्टडी करते हैं, हम बहुत खुदा के करीब रहते हैं,
لیکن خود اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے یا اس کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایماندار ہونا کسی بھی کام کا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل جو ہے بہت ضروری ہے. امیر آدمی سے کیا کہا گیا؟ تو حکموں کو مانتا عمل کرتا. ہاں میں تو جو اس سے جب یہ کہا کہ تیرے اندر ایک لالچ ہے, تیرے اندر ایک حبس ہے, وہ دولت کی حبس ہے, تیرے اندر سب کچھ بیچ کر جو میرے پیچھے ہو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. عمل نہیں کیا. بہت مشکل ہے کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے, پر دولت مند کا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر اس کی بادشاہ میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. چاہیے کہ آپ عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں, ابدی بادشاہی اور ہمیشہ کی بادشاہی کے شہزادے اور شہزادیاں بن کر زندگی بسر کریں. یا نہ رونا, نہ ہو نالا, نہ درد, نہ غم, کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ہم اس کی بادشاہی کے لوگ. کاش کہ ہم سب کو خدا پاک کلام کی